क्लास में हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ाई की। उसमें when we were talking about intrinsic semiconductors, उसमें दो टाइप के होते हैं। ओके, intrinsic means pure, no doping, and extrinsic. We have yes, extrinsic semiconductors. Now this has got two types, N type and P type. N मतलब negative type, P मतलब positive type. Now tell me one thing. Suppose you have an atom. This is nucleus and these are the orbits. So here you have two electrons and let us say there are four electrons here. So these in the outer orbit, these are called valence electrons. Now this electron moved. So what is created here? There is a hole created here. There is a vacancy created here. Originally how many electrons were there? 2 plus 4, 6 electrons were there and 6 protons were there. Now when the holes got created, you have got 5 electrons and 6 protons. So more positive charge now. Okay, so that is how it is. When you have got more holes, it is positive charge. Sometimes we say that positive charges, you use the term positive charge. Basically it is movement of electrons only. But when you have got more holes, means more positive charges are there in the system. So how do you represent them? Suppose you have a sample, we will write like all pluses. Okay, all plus you write. This is called P type. Okay, all pluses means क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है क्या नहीं? इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। लाइक यहाँ पर हो सकता है 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 110 प्रोटॉन्स हैं, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। ये एक एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 110 प्रोटॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहाँ पे वैकेंसी बच गया, ठीक है। तो पी टाइप में क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, लेकिन इसको दिखाने के लिए हम लोग लिखते हैं कि प्लस, ठीक है। एन टाइप को कैसे दिखाएंगे? एन टाइप को हम लोग माइनस से दिखाएंगे। दिस इज एन टाइप। यहां पे क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द साइन कन्वेंशन। ओके, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट, ठीक है। सो ठीक है। So P type means more holes. So P type means number of holes more than number of electrons, and N type means number of electrons more than number of holes. So this is what you have to remember. Okay, now let us move on to the next topic, which is PN junction diode. So what is the meaning of diode? Means it ensures current flow in only one direction. It ensures current flow only in one direction. What is current flow? Flow of electrons. Okay, so in this what we do basically is you take and ऐसा होता है, ये क्या है, ये P टाइप है, ये एक सेमीकंडक्टर है
ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स है। बेसिकली पीएन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, और ये क्या है? ये एन टाइप। ठीक है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। इसमें क्या हो गया? इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे ज्यादा होल्स हैं। हियर मोर होल्स आर देयर, मोर होल्स आर प्रेजेंट इन पी टाइप, और यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हमें फ्लो कराना है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए पहले हमें, अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो यहाँ पे होता क्या है? वी हैव टू सी दैट। यू सी दिस लेयर, हियर देयर आर all positives are there, all negatives are there. What will happen? Positive will attract negative, positive will attract negative. So there will be a movement from this side to this side and movement from this side to this side, isn't it? They are attracted. Here there are all electrons, electron movement in this direction and holes movement in this direction because of mutual attraction. So when you bring them together, यहाँ पर there will be an attraction. So होता क्या है कि ये प्लस और माइनस, देखो ये प्लस और माइनस अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। मान लो कि 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को हम लोग चार्ज वाइज बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज। These two got attracted. What is the net charge? Net charge is 0. So it has become neutral, isn't it? So this boundary, at this boundary, whatever positive and negative charges are there, they will come closer to each other. They are electrically attracted. Then what happens is they form a neutral charge, a neutral layer. तो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर ऐसा एक लेयर बन जाता है। बाउंड्री चार्जेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ के और यहाँ के चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बाउंड्री चार्जेस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक लेयर बन जाता है जिसे हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, सो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये इधर से इधर मूव करने के चक्कर में रहते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि मान लो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, तो उसमें 90 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन यहां बच गया। सिमिलरली यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज गया और जितना पेयरिंग हो सकता था उतना हो गया, और फिर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस बच गए। ऐसा होगा। बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों अभी कोई हिसाब के दे विल नॉट गो कि हाँ भाई मुझे यहाँ से 10 निकलना है, मुझे भी 10 निकलना है। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं। ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ से कुछ, द मोमेंट ऑफ होल्स विल बी ऑन दिस साइड, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव बेसिकली। ओके, तो ये कोई पर्टिकुलर एरिथमेटिक रेशियो में तो होगा नहीं। यहाँ से हो सकता है कि 100 इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो जाए, यहाँ से होल का मूवमेंट जो हो या पॉजिटिव का मूवमेंट हो वो कितना हो, 110 हो सकता है। तो जितना पेयर बन सकता था वो पेयर बन गया, जो बाकी बच गए कुछ इस तरफ रह गए, कुछ उस तरफ रह गए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। ये पॉजिटिव्स को एक प्लेट मान लो, नेगेटिव्स को एक प्लेट मान लो। हो क्या रहा है, यहाँ पे जितने भी नेगेटिव्स बच गए उसको मैंने बोला एक प्लेट, पॉजिटिव्स जो बच गए उसको बोला एक प्लेट। तो अगर दोनों को मैं प्लेट मान लूं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा, तो जिसको हम बोलते हैं VB, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, ओके। ये क्यों क्रिएट हो गया? ये एक्सेस पॉजिटिव इधर चले गए, जितना पेयरिंग हो सकता था वो पेयरिंग हो गया, कुछ उधर चले गए, कुछ इधर आ गए। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, उनको एक प्लेट की तरह मान लो। तो आपके पास दो प्लेट हैं, एक नेगेटिव चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे है। इन दोनों के बीच में कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन दोनों के बीच में कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बोल दिया VB, इसको हमने बोला बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, बैरियर का मीनिंग क्या होता है? जब ट्रैफिक में जाते रहते हो तो मान लो कि आपका गाड़ी किसी एक जगह, आप ऐसे रोड है, आप गाड़ी में ऐसे जा रहे हो, आप इधर टर्न मारना चाहते हो, ये क्या करते हैं, यहाँ पे बैरियर लगा देते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप इधर से इधर नहीं जा सकते, इसका मतलब होता है ये बैरियर होता है। ट्रैफिक में आपने देखा होगा बैरियर बोलते हैं, बैरिकेड बोलते हैं उसको। बेसिकली क्या होता है बैरियर? मतलब एक वॉल। बैरियर का मतलब एक वॉल। वॉल क्या करता है? वॉल, अगर आपका गाड़ी इधर से जा रहा है तो आप मैंने बीच में बैरियर लगा दिया तो आप उधर नहीं जा सकते। तो इसका बैरियर पोटेंशियल नाम क्यों रखा गया है? यहाँ पे देखो कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे कि यहाँ पे जो एक्सेस नेगेटिव है, तो नेगेटिव के ऊपर देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मैं एक पॉजिटिव को पकड़ता हूँ और एक नेगेटिव को पकड़ता हूँ, ठीक है, तो पॉजिटिव पे तुम्हारा फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? पॉजिटिव पे फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है F इज इक्वल टू EQ। तो यहाँ पर चार्ज कितना है? यहाँ पे योर चार्ज इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक ही होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर प्रोटॉन पे जो फोर्स लगा है अगर वो ये डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज पे ये फोर्स कैसे लगाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगाएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू EQ लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये इस डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव पे फोर्स कैसे लगेगा? अगर ये ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स रिवर्स में लगेगा, तो इसके ऑपोजिट लगेगा ऐसे। ठीक है, तो अगर यहां देखोगे, इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में जो भी बैरियर पोटेंशियल है वो कर क्या रहा है? ये पॉजिटिव पे फोर्स ऐसे लगा रहा है, सॉरी ऐसे लगा रहा है, और ये जो नेगेटिव है यहाँ पर इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा है। ठीक है, तो मान यहाँ पे देखो सारे पॉजिटिव हैं और कोई फोर्स लगा रहा है ऐसे, यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं ऐसे और कोई फोर्स लगा रहा है ऐसे, यहाँ पे सारे नेगेटिव हैं और कोई फोर्स लगा रहा है ऐसे। तो जो नेगेटिव इस तरफ मूव करना चाहते हैं ये उसको ब्लॉक कर रहा है, जो पॉजिटिव ऐसा मूव करना चाहते हैं ये इसको ब्लॉक कर रहा है। बराबर, ये उसको ब्लॉक कर रहा है, तो ब्लॉक कर रहा है इसीलिए इसका नाम बैरियर लगा दिया है, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है? हमें कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर दौड़ाना है, लेकिन यहाँ पे जो बैरियर पोटेंशियल बन गया तो वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो नॉर्मल केस में ये कंडीशन हो जाएगा नो कंडक्शन विल हैपन, नो कंडक्शन विल हैपन इन नॉर्मल केस। आपने पीएन जंक्शन को ले लिया, पीएन डायोड को ले लिया, ठीक है, तो उसमें तो कोई कंडक्शन होगा नहीं। तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायसिंग। बायसिंग का मतलब है कोई एक्सटर्नल बैटरी को लगा देना, एक्सटर्नल सोर्स को जोड़ देना, एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ने को बोलते हैं बायसिंग। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पीएन जंक्शन को ले लूं तो वहां तो नो कंडक्शन होगा। नो कंडक्शन किसकी वजह से होगा? बैरियर पोटेंशियल की वजह से होगा। तो बैरियर पोटेंशियल करता क्या है? पॉजिटिव को दूर भगाता है और नेगेटिव को भी दूर भगाता है, तो वहां पे कंडक्शन नहीं होगा। तो लेट अस सी कि बायसिंग में क्या करते हैं। चलो हम लोग देखते हैं बायसिंग में हम लोग करते क्या है। बायसिंग, ठीक है, तो कोई सैंपल है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे मेरा पी टाइप है, ये मेरा एन टाइप है, ये मेरा पी टाइप है। पी टाइप मतलब मोर पॉजिटिव,
मोर पॉजिटिव मतलब मोर होल्स। और ये हो गया मेरा एन टाइप। ये बीच में जो मैंने दो डंडे बनाए हैं, ये हो गया तुम्हारा डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डिप्लीशन लेयर। इसको उठा करके मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया? इसको मैंने कनेक्ट किया नेगेटिव से, और इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से। इसको मैंने कनेक्ट किया हायर टर्मिनल से, और इसको कनेक्ट किया मैंने लोअर टर्मिनल से, लोअर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब मैं ऐसा करूंगा तो इसमें होगा क्या? देखो, ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तुम्हारा नेगेटिव है। तो यहाँ पर सॉरी, गड़बड़ कर दिया मैंने। इसको मैंने कनेक्ट किया हायर टर्मिनल से, और इसको कनेक्ट किया लोअर टर्मिनल से। ठीक है, अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में तुम्हारा एक फोर्स लग रहा है, बराबर। ठीक है, मैं अगर पॉजिटिव की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक VB के वजह से जो बैरियर पोटेंशियल है वहां पर उस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। तो इसको मैंने ऐसे कनेक्ट किया, पॉजिटिव को हायर टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसको लोअर टर्मिनल से, नेगेटिव को लोअर टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो इन दोनों के बीच में भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा। तो ये क्या कर रहा है? ये रोकने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे रिवर्स में कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो इससे ज्यादा है, तभी तो मेरा मूव करेगा, तभी तो मेरा मूव करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायासिंग करना। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायासिंग। ये जो टाइप है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायासिंग। ओके, फॉरवर्ड बायासिंग में हमने क्या किया? पॉजिटिव को हमने कनेक्ट कर दिया हायर पोटेंशियल से, नेगेटिव को कन्वर्ट कर दिया लोअर पोटेंशियल से। तो ओरिजिनली अपना केस ऐसा था कि ये जो हमने इसको नहीं कनेक्ट किया तो ये जो पॉजिटिव को है पीछे धकेल रहा था, नेगेटिव को भी पीछे धकेल रहा था। जैसे ही मैंने ऐसे कर दिया तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बैटरी की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो पोटेंशियल होगा ये इसके पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं इसको मैं 0.8 वोल्ट्स बोल दूं और इसको मैं बोल दूं 0.4 वोल्ट्स, तो ये क्या काम करेगा? अगर मान लो यहाँ पे मैंने 1.2 लगा दिया, 1.2 फिर से ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगा कि तुम्हारा मूवमेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायासिंग। ठीक है, या ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करो, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करो, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायासिंग। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे ओरिजिनली ऐसा एक बैरियर पोटेंशियल था। बैरियर पोटेंशियल तो वैसे भी क्रिएट होगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमने एक्सटर्नल बैटरी को लगा दिया, एक्सटर्नल सोर्स को लगा दिया। अब उसको बैटरी बोलो, अब उसको बैटरी बोलो, उसको कुछ भी बोलो, ये एक एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है, तो जैसे हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से एडिशनल फोर्स लग रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है 10 न्यूटन और 2 न्यूटन, लेट अस से इवन इट इज 2 न्यूटन, क्या होगा? जो ऐसा वाला फोर्स है वो 2 न्यूटन है, और जो ऐसा वाला फोर्स है वो 1 न्यूटन है। क्या होगा? देयर विल बी मूवमेंट ऑफ होल्स इन दिस डायरेक्शन, देयर विल बी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस डायरेक्शन। दिस इज व्हाट इज नीडेड, नो? तो जैसे ही ऐसा होगा तो ये सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, तो आपका करंट उसमें सर्किट में आ जाएगा। यहाँ पे एमीटर लगा दोगे, उनको करंट फ्लो हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, ठीक है, तो हर एक जंक्शन, पीएन जंक्शन का कुछ ना कुछ बैरियर पोटेंशियल होता है। तो बैरियर पोटेंशियल तक तो कोई करंट फ्लो नहीं होता। अगर ये तुम्हारा बैरियर पोटेंशियल है मान लो, तो यहाँ तक तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा करंट जो है इंक्रीज कर जाएगा, सर्किट में करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को नी पोटेंशियल भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड नी पोटेंशियल आल्सो।
ठीक है, तो ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड बायसिंग का। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात क्या है कि पॉजिटिव को हायर टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, नेगेटिव को लोअर टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। दैट इज वन पॉइंट। और जो तुम कनेक्ट कर रहे हो, जहां बायसिंग कर रहे हो, उसका पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल V है मान लो, तो V मस्ट बी ग्रेटर देन VB। V इज इक्वल टू VB पे भी फ्लो नहीं होगा, V इज इक्वल टू लेस देन VB पे तो बिल्कुल फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो। हियर करंट विल बी देयर। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसको हमने बोला फॉरवर्ड बायसिंग। चलो अब हम लोग रिवर्स बायसिंग के बारे में बात करते हैं। रिवर्स बायसिंग क्या होता है, इसी डायग्राम से समझते हैं। मान लो कि मैंने इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया। अभी ऐसा नहीं, मैं उल्टा करूंगा। अभी मैं पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ूंगा और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ूंगा। तो मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ रहा हूँ और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ रहा हूँ। ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है और ये लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, लो पोटेंशियल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलेंगे उसको। अगर मैं 0 और 10 बोलूंगा तो ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। अगर मैं -20 और -10 बोलूंगा, ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। अगर मैं -10 और +10 बोलूंगा तो ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। ठीक है, तो ऐसे समझना है इसको, ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया। तो इसको पकड़ करके अगर मैंने लोअर पोटेंशियल से जोड़ दिया और इसको पकड़ करके मैंने हायर पोटेंशियल से जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा रिवर्स पोटेंशियल, तो रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, दैट वी नीड टू सी। ओके, सो यहाँ पर अगर सबसे पहले क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट का डायरेक्शन होगा, रिवर्स बायसिंग में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन जो होता है, फॉरवर्ड बायसिंग का जो भी डायरेक्शन होता है, उसका रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। मतलब अगर कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट दे दो, ये उसका सेंट्रल पॉइंट है, अगर करंट पहले ऐसे दिखा रहा था, अभी करंट ऐसे दिखाएगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और इसमें क्या है कि जब आप यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल यहाँ लगा रहे हो और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लगा रहे हो, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इन दोनों के बीच में, और फोर्स का डायरेक्शन भी यही होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव की बात करोगे, क्योंकि ये इसे मैच कर रहा है। यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर भी ऐसे ही था ना, ओरिजिनली ऐसे ही था ना, यहाँ पर भी, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, याद है। तो ये इससे मैच कर रहा है अभी, तो यहाँ पर भी तुम्हारा जो फोर्स लगेगा वो इससे मैच करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये ऑलरेडी रोक रहा था, तो ये भी रोकना शुरू करेगा। ठीक है, तो इनिशियली तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, लेकिन मान लो कि जो तुम बायसिंग कर रहे हो, वो बायसिंग तुम्हारे हाथ में है, तुमने बहुत ज्यादा हायर पोटेंशियल ले लिया कंपेयर विथ लोअर पोटेंशियल। अगर तुमने बहुत ज्यादा हायर पोटेंशियल ले लिया, तब क्या होता है, यहाँ करंट फ्लो करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो करेगा। तो अगर तुम यहाँ पे ग्राफ बनाते हो, तो इसका भी क्या है, इनिशियली तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन चूंकि इसको हम पॉजिटिव करंट बोल रहे हैं, तो आफ्टर सम पॉइंट, दिस पॉइंट, इट विल फ्लो, करंट विल फ्लो इन दी रिवर्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल। देखो, जब तुम यहाँ पे पोटेंशियल को इंक्रीज करते हुए जाओगे, तो इंक्रीज करते 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 तुम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तुम मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, सो उसमें क्या होगा, बेसिकली देखो, ये जो सारे मैं माइनस दिखा रहा हूँ, ये माइनस है क्या एक्चुअली, ये सारे एटम्स हैं। तो एटम में क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियस है, फिर तुम्हारा, मैं आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या है, तुम देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए मैंने तुमको बताया था कि तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकते हो, तुम हीट एनर्जी दे सकते हो। यहाँ हम लोग कौन सा पैंतरा यूज कर रहे हैं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहे हैं। जब तुम बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, ये तुम्हारा बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, और वो तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। जैसे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा फ्लो करने की स्थिति में आ जाएगा, तभी तो तुम्हारा करंट होगा।
तभी तो तुम्हारा करंट जनरेट होगा। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगा दोगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे और वो तुम्हारा घूमना शुरू करेंगे, तभी तुम्हारा करंट जो है तुम्हारा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पर मेन चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड बायसिंग में तुम पी टाइप को हायर के साथ जोड़ते हो, यहाँ पर पी टाइप को लोअर के साथ जोड़ते हो। देखो पी टाइप को हमने लोअर के साथ जोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या दोनों में करंट फ्लो करता है? दोनों में करंट फ्लो करता है। इनिशियली तो फ्लो नहीं करता, लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग का जो भी करंट का डायरेक्शन होगा, अगर यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा करंट, लेकिन दोनों में ब्रेक फ्लो करेगा। लेकिन रिवर्स बायसिंग में क्या करना पड़ेगा, हमें ये पोटेंशियल को इंक्रीज करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ताकि ये जो सारे इंडिविजुअल माइनस है ना, ये सब एक एक एटम है। तो एटम में से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकालना है, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। इसके पहले हमने हीट को यूज किया था। अच्छा, एक बात है यहाँ पर कि जब हम लोग इंट्रिंसिक की बात करते हैं, पता नहीं मैंने ये पॉइंट बताया कि नहीं बताया, एक होता है इंट्रिंसिक, ठीक है, और एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में हमने पी टाइप एन टाइप दो टाइप की पढ़ाई की थी ना। इंट्रिंसिक में क्या है कि आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि एकदम परफेक्ट बॉन्ड है, आपको एक्सेस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। एक्सट्रिंसिक में क्या है, रूम टेम्परेचर में भी यू हैव गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप। रूम इलेक्ट्रॉन पे भी तुम्हारा कंडक्शन हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक में तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्शन हो जाएगा। इंट्रिंसिक में आपको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, पता नहीं शायद ये मैंने बात बोली कि नहीं बोली। तो हमने बायसिंग में देखा आज कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग क्या होता है और उसका ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पे दो टर्म है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल और नी पोटेंशियल। नी पोटेंशियल बोलो या उसको क्या बोलते हैं, उसको बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो गैप दिखाया हुआ है, ये गैप के अंदर तुम्हारा कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज इनसाइड द गैप, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर जो है कम ज्यादा होते रहता है। डिप्लीशन लेयर जो होता है वो कोई फिक्स नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द बायसिंग टाइप वो कम रहता है या ज्यादा रहता है। ठीक है, सो these are some of the points. Let's meet up in the with this PN diode we have discussed. Let us see some more concepts in the next class. यहाँ पर मैंने एक बात बोलना भूल गया, शायद पावर चला गया, सॉरी। तो पीएन डायोड का सिंबल क्या है? इसका सिंबल ऐसे आता है। ठीक है, ऐसे आता है। एक ट्रायंगल बनाना है, ये वाला पोर्शन उसको लिखेंगे P और ये वाला पोर्शन लिखेंगे उसको N। ठीक है, सो दिस इज द सिंबल फॉर PN डायोड। सो इट इज शोन लाइक दिस। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, किसी भी कोई सवाल दिया गया हो उसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, यू कैन शो इट लाइक दिस। तो ये सिंबल का मतलब है कि यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे एन टाइप को कनेक्ट किया गया है। तो मान लो अगर ये 0 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट होगा। मान लो अगर ये -10 है तो ये 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि नेगेटिव को मैंने हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। तो देखो, पॉजिटिव को मैंने किसी टर्मिनल से कनेक्ट किया, उसका पोटेंशियल है 0, और नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट से। तो नेगेटिव को कनेक्ट किया हायर पोटेंशियल से, पॉजिटिव को कनेक्ट किया लोअर पोटेंशियल से। तो ये कौन सा बायसिंग होगा? ये होगा रिवर्स बायसिंग। ठीक है, सिंबल को समझ लो, नेगेटिव को हायर पोटेंशियल से जोड़ दिया। चलो कोई दूसरा एग्जांपल में, अगर कुछ ऐसा था, ये तुम्हारा हो गया P, ये हो गया तुम्हारा N, यहाँ पे गोला लगा दो, यहाँ पे एक दूसरा गोला लगा दो, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट से, यहाँ इसको कनेक्ट कर दिया 0 वोल्ट से।
तो ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। राइट, पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे -10 लिखता हूँ और यहाँ पे -20 लिखता हूँ, तब भी ये फॉरवर्ड बायसिंग ही होगा। यहाँ पे माइनस है बोल करके उसको नेगेटिव मत समझा करो। यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये हायर पोटेंशियल पे है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा। ठीक है, तो ऐसे दिखाया जाता है। और जब हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डिप्लीशन लेयर मान लो इतना था इनिशियली, ये तुम्हारा पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव। ठीक है, और इसको हमने पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो ये हो गया रिवर्स बायसिंग। तो ये रिवर्स बायसिंग के चक्कर में होता क्या है, ये जो डिप्लीशन लेयर है ना, ये डिप्लीशन लेयर ये एक्सपैंड कर जाता है। दिस इज द न्यू डिप्लीशन लेयर। सो इन रिवर्स बायसिंग डिप्लीशन लेयर expands. Okay, these are some small points I forgot to tell. Make a note of these points. Okay, चलो।